कि आइडियल सॉल्यूशन है. इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन देयर इज नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा बेटा इन ग्राफ, बिकॉज उनमें क्या होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी फ्रॉम ये रहा डॉटेड लाइन जो है, that is there is a no variation because force of attraction between solvent and solute is equal to solvent solution. So straight line है. Now अगर मान लीजिए हमने कोई solute ऐड किया which is non volatile है, non electrolyte है, और मे बी volatile electrolyte है, यहाँ पे हम अभी solution liquid डिस्कस कर रहे हैं, एंड उनका इंटरेक्शन जो है वो कम हो गया. यहाँ पे हम लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं. इफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिक्रीजेस, ओके, दोनों लिक्विड का इंटरेक्शन कम हो गया, अब क्या होगा, सॉल्वेंट भी वेपोराइज होगा, सोल्यूट भी वेपोराइज होगा, एंड अब कौन सा डेविएशन आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर वेपर प्रेशर. एंड इन द सेम वे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन क्या होगा, उनमें नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो वेपर प्रेशर. क्लियर, ग्राफ आगे समझ में. एंड हेयर हमने लिया है कि x1 एक जगह पे अगर 0 1 है, दैट इज मैक्सिमम ओनली one type of solvent or solute is present, then only we can calculate the p naught value, क्योंकि p naught value क्या था, प्योर solvent और solute के लिए था. and in another side it will x1 0 है and x2 क्या है, 1 है मैक्सिमम है. so उसका p naught आ जाएगा, then we put the graph. okay, yes, okay, any other student और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क. no one. Explain osmosis with the help of diagram or diagram and with mathematical derivation. So here is the Thissell funnel in which solution is present and it is covered by semi-permeable membrane. Then it is placed in water and solvent particle moves from solvent to solute side as solute concentration of solution is higher and till कब तक होंगे, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम हो जाए. एट द टाइम height is h, we denote height is equals to h, d density of solution obviously, g force of gravity, and it is equal to the pi means osmotic pressure because अब ना तो अंदर से solute particle बाहर solution particles बाहर आ रहे हैं, ना solvent particles अंदर जा रहे हैं. It is the extra pressure, ये बता चुकी थी मैं. एंड कैलकुलेट करने के लिए सेम वे PV is equals to nRT वाला फॉर्मूला है, pi V is equals to nRT. एंड पाई कैलकुलेट करेंगे तो n upon V, we know that n upon V means n number of moles and V is volume is equals to C. तो pi is equals to CRT आ जाएगा आपके पास. एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ n का मतलब क्या हो जाएगा, given mass upon molar mass, so given mass of solute upon molar mass, and from this we can calculate MB. Here again we say look that ki MB molar mass of solute is inversely proportional to colligative property, that is osmotic pressure. So अगर osmotic pressure increase होगा तो molar mass कम हो जाएगा. Now ये था, ये reasoning questions आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखो पहले इसको. आइसोटोनिक, तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. नाम से ही क्लियर हो रहा है. आइसोटोनिक मींस इफ two solutions having same concentration or same osmotic pressure, then they are known as isotonic solutions. Two different solutions which have same osmotic pressure at a given temperature, they have same elevation in boiling point and depression, all the colligative properties are same if two solutions having same osmotic pressure, so they are known as isotonic. Now in both the cases, if one shows higher osmotic pressure and another one shows the lower osmotic pressure, then a higher one is known as hypertonic and lower one is known as hypotonic. okay, यहाँ तक क्लियर हो गया. नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो यहाँ से देखोगे, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन जो कि अपन पेशेंट को ड्रिप चढ़ाते हैं, ड्रिप जो है वो क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कंटेन्स 0.9% m by v, मास बाय वॉल्यूम NaCl. m by v का मतलब है मास बाय वॉल्यूम.
कितना परसेंट होता है? ये जो सलाइन जो हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं, दिस इज 0.9% NaCl and its osmotic pressure is equal to, associated with this fluid is equal to the fluid present inside the blood cell. मतलब अपना blood cell जो है उसका osmotic pressure जो भी होगा वो किसके equal होगा? 0.9% NaCl solution mass by volume. Is it clear for everyone? समझ गया ना कि blood जो है अपना, blood कैसा है? Fluid ही तो है, liquid है. उसका जो osmotic pressure है, this osmotic pressure is equal to 0.9% mass by volume NaCl solution. Okay. Now अब क्या हुआ? Inside the blood cell. Yes. So it is safe to inject thus blood cell neither swell nor shrink. Intravenous injections लगते हैं बेटा, और ये intravenous injection means veins के अंदर जा रहे हैं और ये बिल्कुल safe है. अब क्या हुआ? Thus blood cell neither swell nor shrink. Now hypertonic अगर है, क्या हो जा रहा है बेटा? I think ये last है. Yes, hypertonic है. More osmotic pressure of one solution than other and hypotonic less. अब इधर देखो बेटा ये डायग्राम, जो ब्लड जो सेल है वो हायर कंसंट्रेशन है और हमने इस ब्लड सेल को लो कंसंट्रेशन में रखा है. ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन लो कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक में. अब क्या होगा? एज बाहर की कंसंट्रेशन कम है, देन solvent molecule moves from outer side to inner blood cell और धीरे धीरे क्या होगा? वो swell हो जाएगा and blood cell burst हो जाएगा. कई बार क्वेश्चन आता है why blood cell is burst when it is placed in solution having more than 0.9% solution और less than अगर होगा तो वो swell up हो जाएगा. Equal अगर है no osmosis, आइसोटोनिक. और अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? लास्ट वन में बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड नाउ अब क्या होगा? फ्लूइड फ्रॉम ब्लड सेल कम्स आउट इन सॉल्वेंट आउटर सॉल्यूशन में एंड इट श्रिंक हो जाएंगे. तो ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. दैट इज ब्लड इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ 0.9% mass by volume NaCl solution. जब नोट करोगे तो इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि इसमें अगर कोई भी रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली आप कर लोगे. ओके. अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एग जो होता है उसको एक बॉटल में रख सकते हैं. अब क्या होगा? एग को पहले कैल्शियम कार्बोनेट में आउटर स्किन जो है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट स्किन व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तब क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एग क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, उसको उसके अंदर डाल देते हैं एंड देन नॉर्मल वो अगेन अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है. ये कई इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा. सो आई थिंक चैप्टर फिनिश हो गया है. नाउ वी विल डिस्कस. मैं स्टॉप कर रही हूँ इस प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड क्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin or 200. आदित्य बुक ले आए? ओके. 200 mm Hg and 415 mm Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution. This is important question, although it is example question, but इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बेटा. इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 and mole fraction of each component in vapor phase. जिस दिन अपन ने फर्स्ट डे एक दिन डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ, तो उस दिन तब बताया था कि अगर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन है then it is represented by x, and if vapor pressure in vapor phase है, mole fraction in vapor phase है, then it is calculated by y. now just मैं एक बार हिंट दे रही हूँ बेटा. इसको न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद सॉल्व करोगे. अगर नहीं होगा तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे. मैं ये शेयर नहीं करूंगी आप लोगों के साथ, इसीलिए क्लास में ही शेयर कर रही हूँ. moles of CH3 we can calculate. moles means given mass upon molar mass. given mass है, molar mass है. moles of CH2Cl2 ये कैलकुलेट कर लोगे. now total moles दोनों को ऐड कर दोगे.
Now mole fraction of CH2Cl2, mole fraction means Na upon Na plus Nb. Mole fraction आ गया आपका एक का CH2Cl2 का, and mole fraction of another is x1 plus x2 is equals to 1. हम 1 से माइनस कर देंगे. I think यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. Yes. Now question क्या है? Chloroform and dichloromethane. Both the liquids are volatile. So volatile अगर है तो राउल्ट्स लॉ का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा जो अपन ने कैलकुलेट किया था. P total is equals to P naught A plus P naught B minus P naught A XB. डेरिवेशन किया था. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस कर रखे. नाउ पुटिंग द वैल्यू, आप वैल्यू पुट करोगे and you will obtain P total. आपके पास आ गया P total is 347.9. I think प्लस माइनस करके आप लोग कैलकुलेट कर लोगे. ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. पुटिंग द वैल्यूज. सिर्फ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के एक ड्रॉबैक होता है कि कैलकुलेशंस थोड़ी लेंथी होती है. अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे. इसीलिए बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स में आउट ऑफ 3 2 and 2.5 मार्क्स तो आ ही जाते हैं. नाउ वी कैलकुलेट द partial pressure of CH2Cl2 and partial pressure of CaCl3. partial pressure calculate करने के लिए फॉर्मूला क्या था? P partial is equals to P total into X. यही तो था जब थ्योरी डिस्कस की थी. वैल्यूज पुट कर दो एंड आपके पास आ जाएगा. इट इज इन सॉल्यूशन आ गया है. एंड वेपर फेज के लिए क्या था? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Y एंड Y के लिए आप क्या लिख रहे हो? P total is 347.9 and individual pressures हैं 285.5. डिवाइड करते चले जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा. I think it is clear. सॉल्व कर लेना. एग्जाम्पल है पर एग्जाम्पल पे मत जाना, खुद सॉल्व करना. एंड इफ अगेन यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स देन प्लीज आस्क. करते चले जाओ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये अगेन एग्जाम्पल ही है. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.50 बार. 1 minute बेटा. Yes. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solute is added and mass given as 0.5 gram when added 39 gram of benzene. Molar mass also given है. Vapor pressure of the solution then is 0. Vapor pressure of the solution given है, that is P solution. What is the molar mass? Everything given है. ये अपना कौन सा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. P नॉट ए गिवन है, P टोटल गिवन है, P नॉट ए अगेन गिवन है, WB MA WA सब गिवन है. कुणाल डाउट आ रहा है? बोलो, अनम्यूट करो. क्लियर? कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है. सब चीजें गिवन होंगी. ओनली फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया था. नाउ एग्जांपल 7. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. That is again it is a given mass. हाँ मैम. कौन? रौनक. यस मैम. हाँ बोलो. मैम एक चीज थी कि ना जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दे रखा है, उससे पता चला ना अपन को ये वो है रिलेटिव लोअरिंग. हाँ रिलेटिव लोअरिंग अपन जब नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे ना अभी तो रिलेटिव लोअरिंग का ये वाला फॉर्मूला लगेगा. पर अगर मान लो आपको आई दे रखा है या आपको ऐसे बता दिया कि आपको KCl दिया हुआ है तो आपको एबनॉर्मल मोलर मास वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा. जो इस फॉर्मूला है इस ये एक मिनट, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा. अच्छा यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे फॉर्मूले के हाफ मार्क्स हैं. वैल्यू पुट करने के हाफ मार्क्स मिल जाएंगे. आंसर क्या और यूनिट के 1 मार्क मिल जाएगा. एंड कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी शो कर दोगे क्रिस क्रॉस करके तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे. तो अगर आंसर नहीं कर रहे तो पूरे 3 मार्क्स हो जाएंगे और आंसर निकाल रहे हो तो 3 मार्क्स, अदरवाइज 2.5 मार्क्स. और मैम थोड़ी बहुत assumption ले सकते हैं क्या? एक मिनट रौनक, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई. यहाँ पे अगर आपको KCl दिया हुआ है या फिर आपको ऐसे दे रखा है कि बेंजोइक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट तो इस फॉर्मूले में आगे आई आ जाएगा बेटा. ठीक है? एब्नॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा वो तो. वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा. अब बोलो, अब तुम क्या बोल रहे हो? मैम इसे थोड़ी बहुत assumption ले सकते हैं ना कैलकुलेशन में? थोड़ी बहुत assumptions ले सकते हैं बेटा. जैसे मान लो कि आपके आ रहा है
0.845 है ना, आप उसको राउंड ऑफ करके 0.85 ले लो, पर यहाँ पे नहीं हाँ ले सकते, ये तो यहाँ पे पूरा ही करके ना तो 0। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ यहाँ पे नहीं ले सकते हो। मतलब अगर मान लो ये थोड़ा सा 6 अगर होता तो आप ले लेते, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो 0 पे ना आ जाए, है ना। हाँ। थोड़ा बहुत चल देते, थोड़ा चलता है तो बेटा। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं क्या आंसर? नहीं, फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दोगे तो आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है मैम। है ना, तो आपको कैलकुलेट करोगे तो ही आपको फुल मिलेंगे बेटा। यस, ठीक है मैम। नाउ यस, और कोई डाउट? आयुष, रावल, पूर्वांशी, सिमरन, गोकुल, कोई डाउट किसी को भी? डाउट पूछते हो तो मुझे अच्छा भी गिवन है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। Now we will find out the moles of glucose 18/180, that is इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई 0.1। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, वैल्यू पुट किया, आपके पास डेल्टा पी आ गया। कल जब मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था तब मैंने वो माइनस करने वाला फॉर्मूला भी लिखा था। तो हेयर टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। टीबी नॉट कितना होगा वाटर का 373.15, आप किस में लोगे, केल्विन में लोगे। यस रौनक 0.15 जैसे आप ओमिट कर सकते हो, आप क्या लोगे, ओनली 373 ले सकते हो, एंड देन प्लस 0.052, तो ये आंसर आ जाएगा टीबी। मतलब क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, दैट वाटर बॉयल, इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन कितने पे बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है, मतलब वाटर किस में, सोल्यूशन का, प्योर तो था ही नहीं क्योंकि हमने उसमें ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया है। नाउ वी कैन फाइंड आउट द टीबी। हमने डेल्टा टीबी एलिवेशन कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद ये सेम न्यूमेरिकल हो गया बेटा। नाउ एग्जांपल 8, एग्जांपल 8, अच्छा यस 1 मिनट बेटा, ये जो इस वीक का जो सिलेबस मैंने दिया है आप लोगों को के लिए, टुडे, आज कितनी है, वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन इस सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का दिन गया, थर्सडे एंड फ्राइडे, मेरे को लगता है कि सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने तक हो जाएगा आप लोगों का, थर्सडे फ्राइडे, देन सैटरडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड नेक्स्ट पूरा वीक, नेक्स्ट पूरा वीक दैट इज अप टू आई थिंक 29 नहीं, ये 4, नेक्स्ट दैट इज 11 अप टू 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे पूरा A to Z, जैसे सॉल्यूशन क्या है, एवरीथिंग विथ न्यूमेरिकल्स, एंड उसके बाद 13 रखा है मैंने मंडे, वो आप लोगों के इन 2 चैप्टर्स के डाउट के लिए सॉल्यूशन। Now we will discuss the boiling point of benzene is 353.23. यहाँ पे pure solvent is benzene and its boiling point is given, that is P naught. When 1.8 gram of non-volatile, that is given mass, it dissolved in 90 gram of benzene, mass of solvent, the boiling point raised to 354.11. That is delta TB given दे दिया है इन्होंने। Calculate the molar mass of the solute. नाउ सीधे सीधे डेल्टा टीबी क्या करोगे, माइनस कर दोगे क्योंकि मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, वी विल माइनस इट, डेल्टा टीबी आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू एंड एमबी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला था अपने पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, एम की वैल्यूज पुट की है, इधर आप एम कैलकुलेट कर लो या फिर फॉर्मूले में रख दो 58 ग्राम मोल माइनस। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, एक हेनरीज लॉ वाले डिस्कस किए थे, एक इनमें से ज्यादा अगर थोड़ा टिपिकल कर देंगे किसी एक सेट में तो आई वाले क्वेश्चन से आ जाता है। नाउ एग्जांपल 9, 45 gram of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600, again 45 gram क्या है, गिवन मास, मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे, मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, that is colligative property, and freezing point of the solution, that is आपको एक बार तो डेल्टा TF कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद TF कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज colligative property, सो डेल्टा TF कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड क्या गिवन फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज TF कैलकुलेट करना है। अगेन सीधे सीधे देखो, बिल्कुल 2 लाइन का न्यूमेरिकल भी नहीं है 3 मार्क्स के लिए। फाइंड आउट द मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, देन मोलैलिटी,
मोलैलिटी कैलकुलेट करोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, वैल्यू पुट कर दो, आपके पास डेल्टा TF आ गया। नाउ आपको TF कैलकुलेट करना है, TF नॉट माइनस डेल्टा TF, क्योंकि डिप्रेशन कम हुआ था। कल का ग्राफ ध्यान है, जब ग्राफ पड़ा था, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो माइनस में जा रहा था, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा था, माइनस में था। तो हम यहाँ पे इसलिए डेल्टा TF को माइनस कर रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू 270.95। कोई डाउट? आदित्य, एनी डाउट? रॉन, मतलब आज की डेट में मैं ये सारे क्वेश्चन मार्क्स फाइंड आउट करना है, पुटिंग द वैल्यूज एंड डायरेक्ट आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो फॉर्मूला बेस्ड हैं। एग्जांपल 11 भी सेम है। 207 centimeter cube of an aqueous solution of protein contain 1.26 gram of the protein. सॉल्वेंट का मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, कैलकुलेट द मोलर मास। व्हाट इज द फॉर्मूला? mb इज इक्वल्स टू wb, अभी बताया था, पाई इज इक्वल्स टू क्या था, n अपॉन v इंटू RT। तो n की वैल्यू निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम गिवन है, R गिवन है, T गिवन है। नाउ ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, इसको थोड़ा सा टाइम देके समझा रही हूँ। रौनक एंड फॉर एवरीवन, read carefully the question. 2 gram of benzoic acid dissolve in 25 gram of benzene, that is in non-polar solvent. We dissolve benzoic acid which in non-polar solvent, so it dimerizes. ये क्या होगा? ये dimerize होगा because non-polar solvent है। in freezing point, अच्छा एग्जाम्पल 13 वाला देखो बेटा, दोनों में डिफरेंस। इट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया है तो डिसोसिएशन हो जाएगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट इट इज एसोसिएट। क्लियर? इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। इफ carboxylic acid, it's not for ionic compound, as ionic compound is only dissolved in polar solvent and it dissociates, so no confusion. But in case of carboxylic acid, if non-polar solvent is present, then it dimerizes, and if polar solvent, then it ionizes. 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. That is आपको delta TF given है। Molar depression constant for benzene आपको KF given है। What is the percentage association? आपको percentage alpha count find out करना है, and alpha find out करने के बाद आपको उसको percent form में लेके आना है। Now we know I is equals to observed number of moles. कितने moles हैं, या after association and before association। तो वैल्यू पुट कर दी है अपने, 1 था, 0, देन 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2 क्लियरली गिवन है, कैलकुलेट कर लो, एंड आई इज 1 माइनस अल्फा बाई 2। रौनक ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऐसे अगर किसी भी क्वेश्चन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, देन वी यूज वांट ऑफ फैक्टर आई। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, वैल्यूज पुट कर दो। Now you calculate alpha. Alpha is 0.992%, 99.2% association. बस सिर्फ ये एक लाइन की कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होगी। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 2 माइनस अल्फा आ जाएगा इंटू 4.9, इसको सॉल्व कर लेना, एंड देन यू विल गेट द आंसर। अल्फा आ जाएगा। 1 मिनट, अगर आपके पास कांस्टेंट पूछते, राइट द एसोसिएशन कांस्टेंट के, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर सिंप्लिसिटी आप लिखोगे 1 माइनस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो नीचे वाला तो ओमिट कर देना, सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है बेटा। 0.6 ml एसिटिक एसिड having density 1.06 ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point, again delta TF given है, want of factor and dissociation आ गया, KF calculate, K calculate करने के लिए आ गया, mass of acetic acid calculate कर लिया है, M molality calculate की है यहाँ पे, this is molality,
मोलैलिटी कितनी आई है 0.0106, एवरीथिंग गिवन है बेटा, मास गिवन है, उससे मोल्स कैलकुलेट कर लोगे, ये मोल्स कैलकुलेट कर लोगे, एंड मोल्स अपना 1 kg है, दैट इज 0.01। मुझे लगता है ये मोलैलिटी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मास इज 0.636 ग्राम, molar mass of acetic acid is 60, so number of moles, number of for molality, number of moles upon mass of solvent into 1000, mass of solvent 1 kg given है, तो simply अपने 1 लिख दिया और आपके पास आंसर आ गया 0.0106। now आपको I कैलकुलेट करना है, डेल्टा TF पता है, KF पता है, M पता है, वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास I आ जाएगा, सिंपल सा I आ गया। now I के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, K कैलकुलेट करना है, and K is equals to C alpha square. Now first we will from I we calculate alpha, and from alpha we calculate K. Here acetic acid dissociate, so initially 100, 1 minus alpha, alpha alpha, total moles 1 plus alpha upon 1, ये पूरा डेरिवेशन है बेटा। मैंने कल जो आप लोगों को स्क्रीन शेयर की थी या चैप्टर शेयर किया था, उसमें इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल फॉर्मूला दे रखा है, तो आप फाइनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, और अगर इफ कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, नाउ यू विल कैलकुलेट, आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, अल्फा कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट आई वी नो आई 1 आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, ओनली अल्फा कैलकुलेट करना है सिंपली, एंड नाउ वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे भी देख रहे हो k इज इक्वल्स टू c अल्फा स्क्वायर, बट फॉर मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई भी मार्क्स एग्जामिनर के पास ये मिले कि इसने लिखा नहीं है, सो यू विल राइट 1 माइनस अल्फा इज लेस देन 1, यहाँ पे साइड में मेंशन कर देना, because actual formula is Ka is equals to C alpha square upon 1 minus alpha, actual formula ये होता है, so आप mention करोगे बेटा। now NCERT in text question, ये वाले क्वेश्चंस आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिए थे। आदित्य ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। प्योर लिक्विड A and B are 450, एंड अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एज इट इज, नो चेंज इन वैल्यूज में भी, mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor pressure. P total calculate करना on the basis of Dalton's and Dalton's law of partial pressure. P total is equals to PA plus PB, and on the basis of Raoult's law था P is equals to P naught XA and P naught B XB. वैल्यू पुट कर दिए, इट इज P total आ गया आप लोगों के पास, क्योंकि 450 XA plus 700 XA and XA plus XB is equals to 1. सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सो XA कितना आ जाएगा, XA आ गया 0.4 एंड XB आ गया 0.6। आई थिंक ये कैलकुलेट कर लोगे बेटा, वैल्यू पुट कर करके 1 माइनस करके। नाउ इन वेपर फेज, वेपर फेज के लिए मैंने कहा था कि वेपर फेज में P नॉट A XA अपॉन P टोटल आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू 0.3, सेम वे 1 माइनस 0.3 0.7। आदित्य नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? ओके ठीक है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव लोडिंग, दैट इज अपने उस पे आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 Kelvin इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम यूरिया दे रखा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम जो समझा रही है हम बाद में थोड़ा भूल जाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर बेटा फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक बार न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट देन we will again discuss it tomorrow, or you can write it through WhatsApp, क्योंकि मैंने कहा ही सुबह कि यश भोजक ने सिर्फ जस्ट एक उसके लिए मैसेज कर रखा था सर्किल करके, तो ऐसे आप पूछ सकते हो। Now vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg। वेपर प्रेशर दे रखा है बेटा, ठीक है, प्योर वाटर का, दैट इज P नॉट गिवन है। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो ये क्या हो गया, P नॉट हो गया ना, प्योर वाटर का P नॉट।
50 ग्राम यूरिया दे रखा है. 50 ग्राम यूरिया means given mass dissolve in 850 ग्राम of water. ये भी given mass है for water का. WA and WB calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. Putting the value of P naught A, P total, P naught A. अपने को ये relative lowering का find out करनी है बेटा. Is equals to XB. नीचे आप यहाँ पे मेंशन करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेग्लेक्टिंग NB इन डिनोमिनेटर. क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन है, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन. सो NB अपॉन NA, पुटिंग द वैल्यू, आप पहले P टोटल कैलकुलेट कर लोगे एंड आफ्टर P टोटल आ गया आपके पास. देन रिलेटिव लोअरिंग मतलब जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, मतलब प्योर अपॉन सॉल्यूशन आप वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा. दैट्स इट, कोई और वो नहीं है. ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉयल, मुझे लगता है शायद ये बस लास्ट ही है. 11th एंड 12th दो ही क्वेश्चंस हैं, तो आज की डेट में आप लोगों के एनसीईआरटी इंटेस्ट खत्म. कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी. एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है. टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड एट लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय दिस. तो इसका मतलब है कि KF गिवन है, गिवन मास गिवन है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट गिवन है, आपके पास डेल्टा TF गिवन है. एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास. मास का मतलब है आपको WB कैलकुलेट करना है, गिवन मास नहीं है यहाँ पे. बाकी सारी चीजें गिवन है. राइट द फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, WB कैलकुलेट कर लो. दैट्स इट. मोलर मास आपको इसमें से कार्बन का 12 into 6, 1 into 8, 16 into 6 प्लस कर लोगे, आंसर आ जाएगा. Now last one. Calculate the osmotic pressure in pascals exerted by a solution prepared by 1 gram of polymer of molar mass this in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. 37 डिग्री सेल्सियस को बेटा आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे फर्स्ट. 37 plus 273. Formula is pi v is equals to NBRT, that is same ideal gas. Pi v वॉल्यूम कितना गिवन है? 450 ml गिवन है. एंड ml अगर है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 1000. मोलर मास भी गिवन है, पाई कैलकुलेट करना है. ओनली पाई इनटू वी की वैल्यू पुट की है. WB इज गिवन, MB गिवन है, R इज 0.083 into 3/110 टेम्परेचर. पाई आ गया आपका बार में 30 एंड इसको आप पास्कल में कन्वर्ट करोगे. वी नो दैट कितना होता है पास्कल, 1 into 10 to the power 5 हो जाएगा. तो अपन ने उसको मल्टीप्लाई किया है into 10 to the power 5 से बार को. 1 bar is equals to 1 into 10 raised to power 5 पास्कल. आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन ये क्या आ गया आप लोगों के पास? 31 पास्कल आ गया. यस, यहाँ तक पूरा इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं. अगर आपको लगता है कि एग्जाम टाइम में टाइम नहीं है तो जस्ट फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज और अभी कर लो, अभी इन नोटबुक में कर लो, सो इट्स इजियर फॉर यू. नाउ मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस अब मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, पर मैं थियोरेटिकली डिस्कस करूंगी बेटा. नाउ बेटा टर्न ऑन योर वीडियोज.